Good morning to you guys. Very good morning to everyone. सभी को नमस्कार. सभी को good morning. Kirti, a very good morning to you as well. Very good morning to all the persons. Sneha, very good morning to you. Prasant, very good morning to you. Very good morning to everyone. Nancy, very good morning to you as well. Very good morning to all the persons, those who are connecting here. Vishal, very good morning to you. Very good morning to everyone. Very good morning to every single student, those who are connecting here. आप सभी को नमस्कार. आप सभी को good morning. Purnima, very good morning to you. Priyanka, very good morning to you. Mohini, very good morning to you. Aman, very good morning to you as well. Very good morning to all the persons, those who are connecting. आप सभी को नमस्कार. आप सभी को good morning. Radha, very good morning to you. Giras, very good morning to you. Salini, very good morning to you. Very good morning to every single student, those who are connecting. आप सभी को नमस्कार. आप सभी को good morning. Yogesh, very good morning to you as well. Very good morning to everyone. Chama, very good morning to you. Very good morning to everyone. सभी को नमस्कार. सभी को good morning. Ashutosh ji, very good morning to you. Happiest Republic Day to all the persons those who are connecting here. आप सभी को नमस्कार. आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं. जो भी हमारे छात्र छात्राएं इस सेशन का हिस्सा हैं, आप सभी को, आपके परिवार को, आपके नियर वंस, डियर वंस, लव्ड वंस को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं. Happiest Republic Day to everyone. Nancy ji, very good morning to you as well. Do drop a message in the respective group of yours that the session is live, so that rest of the persons, those who used to connect with us, they can also be here. And once all such persons are going to be here, we would be starting it. Devans, very good morning to you. Happiest Republic Day to you too. Radha ji, very good morning to you. Purnima, very good morning to you as well. Very good morning to all the persons. Happiest Republic Day to everyone. आप सभी को नमस्कार. आप सभी को रिपब्लिक डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं. अगर आप सुपर 40 का हिस्सा है तो एक सुपर 40 में मैसेज स्टॉप कर दीजिए. अगर आप संकल्प बैच में मैसेज स्टॉप कर दीजिए. नितिन जी, very good morning to you. Sweta, very good morning to you. Revita ji, very good morning to you. Anjali ji, very good morning to you as well. Lakshmi ji, very good morning to you. Very good morning to all the persons those who are connecting here. आप सभी को नमस्कार. आप सभी को गुड मॉर्निंग. Happiest Republic Day to all the persons those who are connecting. आप सभी को नमस्कार. आप सभी को गुड मॉर्निंग. हम थोड़ा सा समझेंगे कि निश्चित तौर पर हम हिस्ट्री का एक सेशन लेकर चल रहे हैं, लेकिन हिस्ट्री के सेशन से पहले थोड़ी सी चर्चा इस 26 जनवरी 1950 के कंटेक्स्ट में भी हम करेंगे. सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द पर्संस दोस हु आर कनेक्टिंग. आप सभी को नमस्कार. आप सभी को गुड मॉर्निंग. 26 जनवरी को ही क्यों गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, हम इस पर चर्चा करने वाले हैं. मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी छात्र छात्राएं जो हमारे साथ सेशन का हिस्सा हैं, निश्चित तौर पर थोड़े से हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स जो हैं, उन हिस्टोरिकल डेवलपमेंट से परिचित होंगे. आशुतोष जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू. वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन. सभी को नमस्कार. सभी को गुड मॉर्निंग. लेट ऑल आवर पीपल बी हियर, देन वी वुड बी स्टार्टिंग इट. ठीक है. हमने जब हम इंडियन पॉलिटी पढ़ते हैं तो इंडियन पॉलिटी में हमारा सबसे पहला चैप्टर होता है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. और जब मैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाता हूँ तो उस पर्टिकुलर समय में मैं आपको जो ब्रिटिश इंडिया में जो भी एक्ट्स रहे हैं, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के माध्यम से पास करे गए हैं, उन सभी एक्ट्स पर चर्चा करते हैं हम. और हम कई बार एक शब्द पर चर्चा करते हैं जो सोवरेन करके है. हम इस शब्द पर चर्चा करते हैं कि भाई ये जो हमारा शब्द है सोवरेन, तो हम कई बार इस पर चर्चा करते हैं. संप्रभुत्व होने पर हम चर्चा करते हैं, तो निश्चित तौर पर हम इस पर भी अभी चर्चा करेंगे. ठीक है. हम इंडिपेंडेंस पर चर्चा करते हैं और एट द सेम टाइम हम कई बार जो है रिपब्लिक जो है, तो एक रिपब्लिक शब्द को भी समझते हैं. हम सोशलिस्ट शब्द जो है उस सोशलिस्ट शब्द पर भी चर्चा करते हैं और सेक्युलर वर्ड जो है तो उस सेक्युलर वर्ड पर भी डिस्कशन करते हैं. इससे अच्छा दिन क्या होगा जब हम इन सभी पर एक साथ एक कलेक्टिव मैनर में जो है वो चर्चा कर सकते हैं. लेकिन चूंकि हिस्ट्री के सेशन का हिस्सा है, पॉलिटी के सेशन का हिस्सा नहीं है, तो हम बहुत डिटेल्ड डिस्कशन इस पर नहीं करेंगे. लेकिन मैं कुछ चीजें जरूर है
आपको बताना चाहूंगा, और उम्मीद करता हूं कि हमारे सभी छात्र छात्राएं निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं इन सभी चीजों से चिर परिचित भी होंगे। 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, यहाँ हमने हमारा सबसे पहला गणतंत्र दिवस जो है यह कमेमोरेट किया, यह सेलिब्रेट किया, फर्स्ट रिपब्लिक डे। ठीक है, ये हमारा सबसे पहला रिपब्लिक डे हमने यहाँ ऑब्जर्व किया। और उसके बाद जाकर तब से ये जो कारवां है वो लगातार चला आ रहा है। आज अगर हम वर्तमान में देखें तो आज हम कहाँ हैं, तो बोले सर आज 26 जनवरी 26 जनवरी 2024, 26 जनवरी 2024 में हम क्या कर रहे हैं, बोले सर हमारा रिपब्लिक डे जो है उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसको कमेमोरेट कर रहे हैं। कई सारे छात्र छात्राओं के मन में सीधा मैं कई बार जब पूछता हूं कि हम क्यों 26 जनवरी को ही रिपब्लिक डे जो है वह ऑब्जर्व करते हैं, क्यों सेलिब्रेट करते हैं, तो कई सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर संविधान लागू हो गया, इस वजह से हम क्या सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। बोले सर इस दिन को हम रिपब्लिक डे के तौर पर ऑब्जर्व करते हैं। गलत नहीं है लेकिन पूरी तरह से सही नहीं है। ठीक है, मोस्ट ऑफ दी पीपल, अधिकांशतर अगर आप लोगों को देखेंगे, मोस्ट ऑफ पीपल, तो अधिकांशतर लोगों के माध्यम से क्या आता है, बोले अधिकांशतर लोगों के माध्यम से आता है, बोले सर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन was commenced on this day, was commenced on this day or was enforced by this day, that's why हम क्या कर रहे हैं, बोले that's why we do observe 26th of January every year as Republic Day, as Republic Day। अगर ऐसा ही कॉन्सेप्ट है मेरे भाई और हमारे सभी छात्र छात्राएं जो हमारे साथ सेशन का हिस्सा हैं, तो हमारे दिमाग में एक पॉइंट आना चाहिए कई बार कि जब किसी का जन्म होता है तो उसे तो हम कॉन्स्टिट्यूशन डे के तौर पर ऑब्जर्व करते हैं। विच मीन्स मैं आपसे जो बहुत क्लियरली कहना चाहता हूँ, बहुत क्लियरली ये कहना चाहता हूँ कि भाई 26 नवंबर 1949, 26th of November 1949, Indian Constitution was adopted, was enacted and was presented to the people of the country। तो वो जो संविधान दिवस है वो तो 26 नवंबर 1949 में मनाया गया और हम हर वर्ष 26 नवंबर में कमेमोरेट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। ऐसा क्या हुआ 26 जनवरी को संविधान के लागू होने से, जिसकी वजह से हमने एक नया वर्ड जो है, एक इंडिया को एक नया स्टेटस दिया, रिपब्लिक इंडिया। ये हम एक हमारे स्टेटस को ऑब्जर्व कर रहे हैं। कोई घटना घटती है ना तो उस घटना को हम कमेमोरेट कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है मैं जो पोल के माध्यम से आपसे एक क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं, आप निश्चित तौर पर उसका जो सही आंसर है वह पोल के माध्यम से सही आंसर का चुनाव करेंगे। पहला क्वेश्चन ध्यान से सुनने समझने का प्रयास करिएगा। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हमारे देश के जो सबसे पहले राष्ट्रपति हैं वह कौन है? फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, पीटीजेएल नेहरू, और कमेंट नहीं करना है प्लीज, है ना। आपके पास पोल आएगा, पोल के माध्यम से ही आपको सही आंसर का चुनाव करना है। कोई भी अपने कमेंट के माध्यम से ज्ञान के चक्षु जो है उसको प्रदर्शित करने का प्रयास ना करे। पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, एस राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपके पास 1 मिनट का समय है। मैं चाहता हूं कि हमारे सभी छात्र छात्राएं जो इस सेशन का हिस्सा हैं, आप अपना वोट जो है जरूर कास्ट करें। जस्ट गिव मी अ सिंगल मिनट। पोल आपकी स्क्रीन पर है। और जो हमारे स्टूडेंट पहली बार हमारे साथ सेशन का हिस्सा हो रहे हैं, जो पोल के बारे में नहीं जानते हैं, आप देखिए भाई, आपकी चैट बॉक्स के जस्ट ऊपर
एक क्रॉस का सिंबल आ रहा है, अगर आप चैट बॉक्स के जस्ट ऊपर क्रॉस के सिंबल को क्या करेंगे, प्रेस कर देंगे तो वहां दो ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे, एक क्रॉस, एक चैट का, एक पोल का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। पोल पर जाइए और वहां से आप अपना वोट जो है वह कास्ट कर सकते हैं। पोल अभी ऑलरेडी चल रहा है, आप अपना वोट जो है कास्ट कर सकते हैं। रश्मि जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द पर्संस दोस हु आर कनेक्टिंग हियर, आप सभी को नमस्कार। मैं इंतजार कर रहा हूं कि हमारे जो सभी छात्र छात्राएं, 26 स्टूडेंट्स हैव कास्टेड देयर वोट एट, 27 स्टूडेंट्स हैव कास्टेड देयर वोट एट। 27 छात्र छात्राओं ने अपना वोट कास्ट किया है और 28 छात्र छात्राएं अपना वोट जो है वह कास्ट कर चुके हैं। एक बार लीडरशिप वोट जो है वह देख लिया जाए। ये बड़ा इंटरेस्टिंग था, ये बड़ा इंटरेस्टिंग था कि मतलब आपका एक का आंसर जो है वो गलत है। अब जिसका भी आंसर गलत है हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन वो जो गलत है, पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज नॉट द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। तो हमारे जो सबसे पहले प्रेसिडेंट थे, वो सबसे पहले प्रेसिडेंट कौन थे? तो बोले सर सबसे पहले प्रेसिडेंट जो है वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे थे। आपके पास लीडरशिप बोर्ड है, आप लीडरशिप बोर्ड वहीं देख सकते हैं। आपके पास लीडरशिप बोर्ड जो है पोल सेक्शन में आ रहा होगा, आप निश्चित तौर पर देख पाएंगे। आ रहा है? जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए। चलिए ठीक है, हेडिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट, आगे बढ़ रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। अब इस पर हमने चर्चा क्यों करी? सबसे पहले राष्ट्रपति पर नहीं आया, कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना, नहीं आया तो इट्स कंप्लीटली फाइन, बाद में देख लेंगे हम, कोई कोई बात नहीं है ना। 27 छात्र छात्राओं को मैं आपको वैसे ही बता देता हूं, आउट ऑफ द 28 स्टूडेंट्स 27 हैव ऑप्टेड फॉर द करेक्ट आंसर। 28 छात्र छात्राओं में से 27 छात्र छात्राओं का आंसर जो है वह पूरी तरह से सही था। एक स्टूडेंट ने गलत आंसर का चुनाव किया था, और जिसका भी हो कोई बात नहीं। अब यहां राष्ट्रपति पर चर्चा क्यों करी गई? राष्ट्रपति पर चर्चा करने का पीछे का कारण है, यहां पर देखो, हम अगर कई सारी कंट्रीज को ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमने कहा एक ए कंट्री है, एक बी कंट्री है, एक सी कंट्री है और एक डी कंट्री है। अब एक रिपब्लिक वर्ड का एक अपना लिटरल मीनिंग होता है बेटा, रिपब्लिक शब्द का एक अपना लिटरल मीनिंग होता है। लिटरल मीनिंग क्या होता है? द हेड ऑफ द कंट्री, द हेड ऑफ कंट्री is elected is elected directly is elected directly. That country is referred as republic country, is referred as republic country. Am I very clear to all the persons those who are connecting here? क्या आपको समझ आया कि जिस देश का मुखिया जो है वह चुना हुआ होता है, वह देश कैसा होता है? वह देश आपका रिपब्लिक होता है। तो इस वजह से हम क्या कंसीडर कर रहे हैं? तो बोले सर इस वजह से हम इंडिया को रिपब्लिक कंसीडर कर रहे हैं। तो मतलब ये है, नितिन जी, पूर्णिमा जी, शालिनी जी, गिरिराज जी, खुशबू जी, आकांक्षा जी, विशाल जी, आशुतोष जी, अमन जी और हमारे सभी दूसरे छात्र छात्राएं, हमने देखा कि इसमें से ऐसी कौन सी कंट्रीज हैं जिनके जो मुखिया हैं, जिनका जो हेड है वह कैसा है? बोले सर इलेक्टेड है। इलेक्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, इलेक्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, माफ कीजिएगा। बोले सर जिस देश का मुखिया चुना हुआ है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह डायरेक्टली चुना हुआ है या इनडायरेक्टली चुना हुआ है। हमने देखा कि सर ए कंट्री का मुखिया जो है वह इनडायरेक्टली चुना हुआ है, हमने देखा कि सर डी कंट्री का मुखिया जो है वह चुना हुआ है, इलेक्टेड है। ठीक है, कैसा है? बोले सर इलेक्टेड है। तो यहां से हमें क्या समझ आ रहा है? तो यहां से हमें समझ आ रहा है कि ए कंट्री और डी कंट्री जो है वह कैसे हैं? रिपब्लिक है। तो बस आपको यही समझना है कि हम सबसे पहले तो हेड ऑफ द कंट्री समझना है भाई, कि हमारे यहाँ हेड ऑफ कंट्री कौन है? तो बोले सर हेड ऑफ कंट्री वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रेसिडेंट। हम राष्ट्रपति की बात कर रहे हैं, एटलीस्ट नॉमिनल हेड। ये कैसे राजा है, ये कैसे मुखिया है? बोले सर ये हमारे नॉमिनल मुखिया है, ये हमारे नॉमिनल हेड है, ये किताबों में मेंशन्ड हेड है।
एम आई वेरी क्लियर टू ऑल द पर्सन? और राष्ट्रपति कैसे हैं भारत में? तो राष्ट्रपति भारत में चुने हुए हैं। कैसे हैं बोले सर? इलेक्शन के माध्यम से आते हैं। तो इस वजह से कंट्री क्या है बोले सर? इलेक्टेड है। और 26 जनवरी 1950 में क्या हुआ बोले सर? 26 जनवरी 1950 में भारत को सबसे पहले इलेक्टेड प्रेसिडेंट मिले, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इस वजह से 26 जनवरी 1950 में भारत क्या हुआ? रिपब्लिक हुआ। एम आई वेरी क्लियर टू ऑल द पर्संस दोज हु आर कनेक्टिंग हियर? संविधान लागू होने से संविधान का एक फीचर इनेक्ट हुआ। इस अभी क्या होगा बोले सर? देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट इनटू द कंट्री। मतलब आर्टिकल नंबर 52 जो है वो इनेक्ट हो गया। अमन जी, आशुतोष जी, पूर्णिमा जी, देवांश जी, कीर्ति जी, लक्ष्मी जी और हमारे सभी दूसरे छात्र छात्र हैं, राधा जी और सभी दूसरे छात्र छात्र हैं। और फिर इसी आर्टिकल, एक और आर्टिकल 54 भी इनेक्ट हुआ। आर्टिकल 54 में क्या था बोले सर? इनडायरेक्टली इलेक्टेड होंगे, इलेक्टोरल कॉलेज के माध्यम से इलेक्टेड होंगे। तो सर इलेक्शन के माध्यम से हमारे राष्ट्रपति हमें मिले। इस वजह से हमारा देश 26 जनवरी 1950 से हर वर्ष 26 जनवरी में क्या मनाता चला आता है बोले सर? गणतंत्र दिवस मनाता चला आ रहा है। तो संविधान लागू होना एक ठोस वजह नहीं कह सकते हम कि सिर्फ संविधान लागू हुआ तो हमारा देश गणतंत्र कहला रहा है। संविधान लागू होने की वजह से हमारे देश में हमें इलेक्टेड राष्ट्रपति मिले, और हमारे देश में इलेक्टेड राष्ट्रपति मिले, इस वजह से हमारा देश गणतंत्र है। उम्मीद है इस गणतंत्र दिवस पर मैं आप सभी को गणतंत्र की परिभाषा के साथ पूरी तरह से स्पष्ट हूं, और आज से आप निश्चित तौर पर यह बता पाएंगे, कह पाएंगे कि हम गणतंत्र क्यों हैं। हम गणतंत्र सिर्फ इस वजह से नहीं है कि संविधान लागू हुआ। हम गणतंत्र इस वजह से हैं क्योंकि हमारे देश में हमारे जो मुखिया हैं, हमारे जो हेड हैं, वो इलेक्टेड हैं। और अगर कोई आपके साथ इस पर बहस करना चाहे, कीर्ति जी, महिमा जी, आशुतोष जी, लक्ष्मी जी, स्नेहा जी, नैन्सी जी, शालिनी जी, कीर्ति जी, नितिन जी और सभी दूसरे छात्र छात्र हैं, बोले सर हुआ तो इसीलिए ना क्योंकि संविधान लागू हुआ। क्योंकि देखो भारत में ना कई सारे लोग हैं, भारत में क्या पूरे विश्व में ऐसे कई सारे लोग हैं जो अपनी बात को प्रूव करने के लिए कुछ भी कह सकते हैं। तो यहां एक सटीक एग्जांपल आपके पास है कि सर संविधान तो जो है वो इन कंट्रीज में भी है, संविधान तो इस कंट्री में भी लागू हुआ, संविधान तो स्नेहा जी, प्रशांत जी, महिमा जी, कीर्ति जी, राधा जी, रश्मि जी और हमारे सभी दूसरे छात्र छात्र हैं, संविधान तो इस कंट्री में भी लागू हुआ। एम आई वेरी क्लियर टू ऑल द पर्सन? लेकिन ये कंट्री तो रिपब्लिक नहीं हुई। अंडरस्टूड टू एवरी सिंगल स्टूडेंट दोज हु आर कनेक्टिंग कि हम ही क्यों गणतंत्र हैं? एग्जैक्टली खुशबू जी, बिल्कुल। तो आपको समझ आ गया? जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए क्या मैं पूरी तरह से क्लियर हूं आपको? चलिए बढ़िया, दैट्स रियली वेरी गुड। तो अब थोड़ा सा हिस्टोरिकली, अब चूंकि हम इतिहास पर चर्चा कर रहे हैं तो ये इतिहास ना बहुत जरूरी है। हम थोड़ी सी निश्चित तौर पर चालकोलिथिक पीरियड पर तो हम चर्चा कर ही लेंगे, ठीक है। हम समझ ही लेंगे कि जो हमारी एंशिएंट हिस्ट्री चल रही है हम उसको तो लेकर चलेंगे ही। लेकिन 26 जनवरी में ही हम हमारा संविधान जो है वो लागू क्यों किया गया? वाई 26 जनवरी ओनली? मोहिनी जी, खुशबू जी, महिमा जी, अमन जी एंड रेस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप निश्चित तौर पर एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक संस्था है, भारत की सबसे पुरानी पार्टी, द ओल्डेस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जिसे हम इंडियन नेशनल कांग्रेस के नाम से कंसीडर करते हैं। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन 1885 में हुआ, 1885 में। और 1885 में इस संस्था का जब गठन हुआ एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के माध्यम से, तो इस संस्था में ना एक बड़ा अच्छा फीचर है। फीचर क्या था? तो बोले सर फीचर ये था कि ये हर वर्ष में एक सेशन कंडक्ट करते थे, और हर वर्ष में जो सेशन कंडक्ट किया जाता था उस पर्टिकुलर वर्ष में, उस पर्टिकुलर सेशन में पूरे वर्ष के लिए क्या किया जा रहा है बोले सर? एक टास्क जो है वो डिसाइड किया जा रहा है। लक्ष्मी जी, कीर्ति जी, नैन्सी जी, प्रशांत जी, गिरिराज जी, हरिओम जी और हमारे सभी दूसरे छात्र छात्र हैं, शालिनी जी, योगेश जी, नैन्सी जी, खुशबू जी, नितिन जी, अंजलि जी। तो वो जैसे हम बजट की चर्चा करते हैं ना कि 1 अप्रैल टू द 31 मार्च
एक बजट प्रेजेंट किया जाता है और इस बजट के माध्यम से क्या किया जाता है, बोले सर इस बजट के माध्यम से जो हमारा अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर है, उस अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर के लिए जो प्रोग्राम्स हैं उन प्रोग्राम्स को डिसाइड किया जाता है। सिमिलरली बोले सर इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक सेशन होता है साल में, या होता था एक साल में, जिस सेशन में यह निर्धारित किया जाता था कि भाई हम क्या टास्क जो है वो लेकर चलने वाले हैं, और उसके लिए स्नेहा यह एक रिजोल्यूशन पास करते थे। 1906 1906 अंजलि जी, एक सबसे पहला ऐसा सेशन, मुझे उम्मीद है कि आप स्वतंत्रता संघर्ष को निश्चित तौर पर समझते होंगे, और स्वतंत्रता संघर्ष में 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ, द पार्टीशन ऑफ बंगाल, और उस बंगाल पार्टीशन का रिजल्ट क्या है, तो बोले सर अगर जितना 1857 की क्रांति का योगदान है, द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857 to awaken the masses of the country to stand together for the sake of the country, इतना ही बंगाल पार्टीशन का भी क्या है कंट्रीब्यूशन है। जिस प्रकार से 1857 की क्रांति को हम एक ऐसा इतिहास में सबसे पहला डेवलपमेंट कंसीडर करते हैं, जिस डेवलपमेंट की वजह से भारत में सबसे पहली बार हमें हिंदू मुस्लिम यूनिटी जो है वह नजर आई, ऐसा ही एक डेवलपमेंट 1905 में 1905 में बंगाल पार्टीशन के तौर पर हुआ। लॉर्ड कर्जन ने जो बंगाल पार्टीशन किया, उस बंगाल पार्टीशन का रिजल्ट क्या है कि भाई लोग जो है एक साथ आए हैं, और 1905 से देश में स्वदेशी मूवमेंट चलाना स्टार्ट करे गए। 1906 फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम द डिमांड ऑफ द स्वराज हैड बीन पुट फॉरवर्डेड बाय दादा भाई नौरोजी इन द कैलकाटा सेशन। 1906 में कलकत्ता में एक सेशन प्रिजाइड किया गया दादा भाई नौरोजी के माध्यम से, और दादा भाई नौरोजी ने इस पर्टिकुलर सेशन में स्वराज जो है वो स्वराज की डिमांड को रखा। अब क्योंकि हमें यहां स्वराज की डिमांड को समझना है, और अगर हम स्वराज की डिमांड को समझना चाहते हैं तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो दो दल हैं, जो दो ग्रुप्स हैं, एक मॉडरेट ग्रुप और एक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप, हमें ये समझना होगा। हमें गरम दल और नरम दल के बारे में थोड़ा सा समझना होगा। जब हम गरम दल की बात करते हैं तो बिपिन चंद्र पाल, लाल बाल पाल जो है ये हमें याद आ जाते हैं, बाल गंगाधर तिलक जी हमें याद आ जाते हैं, लाला लाजपत राय जी हमें याद आ जाते हैं, बिपिन चंद्र जी जो है वह हमें याद आ जाते हैं। तो बाल ये जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप था, ये एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप स्वराज को ही कैसे लेकर चल रहा था, एज ए इंडिपेंडेंट टास्क लेकर चल रहा था कि भाई हमारा अगला जो गोल है, अगला जो टास्क है वो क्या है, इंडिपेंडेंट है, कि हम इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं और इंडिपेंडेंस की डिमांड रखना है। लेकिन मॉडरेट ग्रुप्स में दादा भाई नौरोजी और जो दूसरे कई सारे लीडर थे, जो 1885 से लेकर 1885 से लेकर 1905 का दौर है मॉडरेट्स वाला, तो दादा भाई नौरोजी ने या मॉडरेट ग्रुप्स ने इस स्वराज का लिटिल मीनिंग चेंज कर दिया। और स्वराज का लिटिल मीनिंग उन्होंने क्या रखा, तो स्वराज का लिटिल मीनिंग जो है उन्होंने सेल्फ गवर्नेंस रखा, कि हम क्या चाह रहे हैं, हम स्वशासन चाह रहे हैं। Am I very clear to all the persons with the very same? And this demand of the Swaraj in the form of the self-government is going to be the reason for the partition or the split between the Indian National Congress into the two groups, that is the moderates as well as the extremists in the 1907। वो जो सूरत में बंटवारा हुआ 1906 में, ये सेशन हुआ जिसमें सेल्फ गवर्नमेंट की डिमांड रखी गई स्वराज के फॉर्म में, और यही वही डिमांड है जिसकी वजह से क्या हुआ, 1907 के सेशन में कांग्रेस में हमें विभाजन नजर आया। क्योंकि भाई एक्सट्रीमिस्ट क्या चाह रहे थे, नितिन जी, श्वेता जी, खुशबू जी, आकांक्षा जी और सभी दूसरे छात्र हैं, निवेदिता जी, तो एक्सट्रीमिस्ट चाह रहे थे इंडिपेंडेंस एज एन इमीडिएट गोल, और हमारे मॉडरेट ग्रुप ने इसे क्या कर दिया, बोले सर सेल्फ गवर्नमेंट, स्वशासन। सब्सिक्वेंटली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम्स, कालांतर में जब हम जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, कई सारे ग्रुप्स आए। मुझे पूरी उम्मीद है आप निश्चित तौर पर परिचित हैं, आपके पास जानकारी है मॉडरेट्स के बारे में, आपके पास जानकारी है एक्सट्रीमिस्ट के बारे में, और इतना ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन जो है भारत में वह मिलिटेंट नेशनलिज्म का रहा है। जब हमारे एक्सट्रीमिस्ट का सपरेशन हुआ तो उस पर्टिकुलर समय में एक नया ग्रुप जो है कंट्री में राइज कर रहा है, जिसे हम मिलिटेंट नेशनलिज्म के आधार पर जानते हैं, कि ना हम चर्चा करेंगे, ना हम धरना देंगे,
हम गोला और बारूद के आधार पर क्या करेंगे, हमारे जो गोल्स हैं उनको प्राप्त करेंगे। इसकी शुरुआत जो है 1908 से हमें नजर आती है। और हम धीरे धीरे जब आगे बढ़ते चले जा रहे हैं तो निश्चित तौर पर सुभाष चंद्र बोस जी हमें नजर आ रहे हैं, लाला लाजपत राय जी हमें नजर आ रहे हैं, चंद्रशेखर आजाद जी हमें नजर आ रहे हैं, भगत सिंह जी हमें नजर आ रहे हैं, सुखदेव जी हमें नजर आ रहे हैं, और कई सारे लीडर्स, मतलब ऐसे मार्टियर्स जिनके कंट्रीब्यूशन, किसी के भी कंट्रीब्यूशन को कम नहीं आंका जा सकता, चाहे वो है गांधी जी हो, चाहे वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हो, या कोई भी उस पर्टिकुलर समय का एक आम नागरिक क्यों ना हो। लीडर का सबसे इंपॉर्टेंट टास्क होता है सबको एक साथ लेकर चलना। गांधी जी वो लीडर है जो सबको एक साथ लेकर चल रहे हैं, और सब एक साथ चल रहे हैं एक व्यक्ति की लीडरशिप में, तो किसी का भी कंट्रीब्यूशन जो है वो कम नहीं है। व्यक्ति के अपने गोल्स को प्राप्त करने के तरीके थोड़े अलग अलग हो सकते हैं, चाहे नेताजी हो, चाहे चंद्रशेखर आजाद जी हो, चाहे भगत सिंह जी हो, चाहे मोहनदास करमचंद गांधी जी हो, या कोई भी उस समय का व्यक्ति हो, सबका ही ध्येय जो है, सबका ही ऑब्जेक्टिव जो है वो स्वतंत्रता है। बस स्वतंत्रता को प्राप्त करने के तरीके थोड़े अलग अलग हैं। 1929 1929 में जब भगत सिंह जी को अरेस्ट कर लिया गया, तो पंडित जी जो है जवाहरलाल नेहरू जी, ये महात्मा जी के पास पहुंचे, गांधी जी के पास पहुंचे, और उन्होंने बताया कि मासेस में जो है एक गुस्सा है। क्यों? क्योंकि बोले भगत सिंह जी को अरेस्ट कर लिया गया। परिणाम क्या है? तो परिणाम, मोहनदास करमचंद गांधी जी ने उस समय की जो हवा है उसका रुख समझा, और उसको समझते हुए उन्होंने जवाहरलाल नेहरू जी से कहा, पंडित जी एक काम करिए, अगला इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन है इसे हम लाहौर में रखते हैं और आप इसकी अध्यक्षता करिए। सो इट वॉज इन द ईयर ऑफ 1929 लाहौर सेशन। जब क्या किया गया, बोले सर, जब सबसे पहली बार पूर्ण स्वराज की डिमांड जो है वह रखी गई, and in this session only the demand of the Purna Swaraj had been put forwarded by Pandit Jawaharlal Nehru. And please try to hear me out on a very clear cut note. In the very same session, Pandit Jawaharlal Nehru started that 26th January is going to be the symbolic Independence Day till the time जब तक हम स्वतंत्रता जो है वह प्राप्त नहीं कर लेते। तो अगला 26 जनवरी 1930 जो होगा वह हम सबसे पहले पूर्ण स्वराज दिवस के तौर पर मनाएंगे। एम आई वेरी क्लियर टू एवरी सिंगल स्टूडेंट विद द वेरी सेम? यू पीपल कैन लेट मी नो। जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आपको स्पष्ट हूं कि ये जो 26 जनवरी की डेट जो दिमाग में आई है, ये जो 26 जनवरी पर सबसे पहली बार चर्चा हुई है, तो वह 26 जनवरी पर चर्चा सबसे पहली बार कहां हुई है? तो ये 26 जनवरी पर चर्चा जो है सबसे पहली बार 1929 में हुई है, 1929 में हुई है। और 26 जनवरी 1930 हमारा सबसे पहला पूर्ण स्वराज दिवस है। अब मुझे उम्मीद है कि हम थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं कालांतर में। योगेश जी, विशाल जी, अमन जी, आशुतोष जी, नितिन जी, महिमा जी, राधा जी, और हमारे सभी छात्र छात्राएं, चाहे आप बीपीएससी के एस्पिरेंट हो, चाहे आप एमपीपीएससी के एस्पिरेंट हो, या किसी भी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, हम 1947 में आते हैं। 1947 में आने से पहले हम 1946 में आते हैं। 1946 एक बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप यह जानते हैं कि 1939 से जो स्टार्ट हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इट एंडेड इन द ईयर ऑफ 1945। और जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो इसके साथ ही साथ हमें क्या नजर आ रहा है? तो बोले सर, इसके साथ ही साथ हमें ब्रिटेन में, हमें इंग्लैंड में सत्ता में परिवर्तन नजर आ रहा है, और सत्ता के इस परिवर्तन में हमें वहां क्लेमेंट एटली जो है वह प्राइम मिनिस्टर नजर आते हैं। जब वहां सत्ता हस्तांतरण हुआ, जब वहां गवर्नमेंट चेंज हुई, तो अगले प्रधानमंत्री जो है वह लॉर्ड क्लेमेंट एटली नजर आते हैं। लॉर्ड क्लेमेंट एटली एक लिबरल व्यक्ति हैं। वह समझ रहे हैं that this is the right time to grant the independence to the Indians. And he even made the statement by 20th of February 1947. उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दिया कि भाई अगले जून 1948 से पहले, अंजलि जी, जून 1948 से पहले हम इंडिया को इंडिपेंडेंस देने वाले, हम डोमिनियन स्टेटस भी दे देंगे, हम इंडिपेंडेंस जो है वो ग्रांट कर देंगे।
और इसी के चलते हुए उन्होंने क्या किया है, और इसी के चलते हुए उन्होंने लॉर्ड माउंटबेटन को भारत भेजा हुआ है। और जब लॉर्ड माउंटबेटन भारत आए, तो लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत की स्थितियों का जायजा लेने के बाद, आफ्टर हैविंग कोर्स ऑफ स्टडी ऑफ इंडियन सर्कमस्टांसेस, लॉर्ड माउंटबेटन ड्राफ्टेड अ प्लान बाय 3 जून। इन्होंने एक प्लान तैयार किया इंडिया की स्वतंत्रता का, भारत के विभाजन का, भारत की स्वतंत्रता का और भारत के विभाजन का जो प्लान है, ये लॉर्ड माउंटबेटन प्लान है जो 3 जून में तैयार किया गया। और इसी 3 जून प्लान के आधार पर जब इसे ब्रिटिश संसद में रखा गया, इट वॉज 16th ऑफ जुलाई जहां इसे पास कर दिया गया, इट वॉज 18th ऑफ जुलाई जहां इसे ब्रिटिश असेंट दे दिया गया, और 18 जुलाई 1947 में, 18th ऑफ जुलाई 1947, द लॉर्ड माउंटबेटन प्लान बिकेम एन इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। The most important provision of these act were, or this act was, India is going to be divided into the 2 dominion। कौन कौन से 2 डोमिनियन में डिवाइड होने वाला है? बोले सर इंडियन डोमिनियन में, पाकिस्तान डोमिनियन में। एंड इंडिया विल बी इंडिपेंडेंट बाय 15th ऑफ अगस्त 1947। अब हमें ये समझना है कि वो 1929 में हमने निर्धारित किया था कि हम 26 जनवरी में अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, पूर्ण स्वराज दिवस मनाएंगे। हमने हमारा पूर्ण स्वराज दिवस जो है 26 जनवरी 1930 में मनाया। अब हमें एक्चुअली इंडिपेंडेंस जो है वो कब मिल जाती है? तो हमें एक्चुअल इंडिपेंडेंस जो है वो 15 अगस्त 1947 में मिल जाती है। और इसके चलते हुए ही जब हमने, चूंकि संविधान सभा जो है, अपने संविधान सभा में भी कई सारे परिवर्तन आए। आप निश्चित तौर पर परिचित होंगे कि कैबिनेट मिशन की रिकमेंडेशन के आधार पर नवंबर 1946 में, नवंबर 1946 में क्या आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है, संविधान सभा जो है वो एग्जिस्टेंस में आती है। और दिसंबर 1946 में, 9th ऑफ दिसंबर 1946, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली स्टार्टेड फंक्शनिंग। तो वो जब ये लॉर्ड माउंटबेटन प्लान आया, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया, इसके माध्यम से कई सारे परिवर्तन हुए। हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सोवरेन हुई। हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 9 दिसंबर 1946 से लेकर 26 नवंबर 1949, अ टोटल ऑफ 2 years 11 month and 18 days, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट कर दिया, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया। 26 नवंबर 1949 में संविधान बन गया। संविधान बन गया, अडॉप्ट कर लिया हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, संविधान सभा में ही हमने हमारे संविधान को 26 नवंबर 1949 में अडॉप्ट कर लिया। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी छात्र छात्राओं को इस लेवल पर पॉलिटी पढ़ाई गई है कि आपके पास आइडिया है कि 26 नवंबर 1949 में ही 395 आर्टिकल्स में से 16 आर्टिकल्स जो हैं उनको इनेक्ट कर दिया गया। और 16 आर्टिकल्स के अलावा जो हमारे सभी आर्टिकल्स हैं उनको इन्फोर्स किया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की अनुशंसा पर, रिकमेंडेशन पर। 26 जनवरी की वो आपकी जो हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है, उस हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस को मेंटेन करने के लिए 26 जनवरी 1950 में। और जब हमारे देश में संविधान आया 26 जनवरी 1950 में, आर्टिकल 52 इनेक्ट हुआ, हमारे देश को राष्ट्रपति मिले, चुने हुए राष्ट्रपति मिले, और इस तरीके से हम गणतंत्र हुए। तो मुझे जल्दी से हमारे सभी छात्र छात्राएं जो भी हमारे साथ सेशन का हिस्सा हैं, कीर्ति जी, विशाल जी, प्रशांत जी, मोहिनी जी, पूर्णिमा जी, आशुतोष जी, प्रियंका जी, नैन्सी, अमन, आशुतोष, गिरिराज, राधा, शालिनी, देवांश, योगेश, नैन्सी, खुशबू, समर्थ, नितिन जी, अंजलि जी, श्वेता जी, निवेदिता जी, महिमा जी, ऋतिक जी, रश्मि जी, आफरीन जी, क्षमा जी, शालिनी जी, आकांक्षा जी, क्या पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको रिपब्लिक का? जल्दी से मुझे एक बार कमेंट करके बता दीजिए। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीजें आपको बेहद स्पष्ट हैं। चलिए, दैट्स रियली वेरी गुड। एक बार इसी के साथ आपको और आपके परिवार को, आपके नियर वंस, डियर वंस, लव्ड वंस को फिर से गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए, तो अब हम हमारे सेशन को शुरू करेंगे। और हमारा सेशन जो है, हम स्टोन एज को लेकर आगे बढ़ रहे थे। और स्टोन एज में जो हम चर्चा कर रहे थे, तो स्टोन एज में हमारी जो चर्चा थी वो एक इसको लेकर थी। बोले सर लास्ट फेज पर हम चर्चा कर रहे थे। लास्ट फेज हमारा क्या था? बोले सर न्यूलिथिक फेज पर हम चर्चा कर रहे थे। और न्यूलिथिक फेज में हम डिस्कस कर रहे थे
कि जो हमारा लास्ट फेस है इसको क्या कंसीडर किया जाता है, बोले सर इसको चैल्कोलिथिक जो है वो कंसीडर किया जाता है। ये हमने कल डिस्कस किया हुआ था। तो हम चैल्कोलिथिक फेस को ही कंटिन्यू करेंगे और जहां मैंने कल लेफ्ट आउट किया था मैं वहीं से मेरे सेशन को लेकर चलूंगा। एक बार बस मुझे जल्दी से ये कमेंट करके बता दीजिए कि प्रीवियस हमने जो 4 सेशंस पढ़े हैं, इंट्रोडक्शन टू द हिस्ट्री एज वेल एज द इंट्रोडक्शन टू द प्री हिस्ट्री, ये सारी चीजें जो है वो आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर हैं या नहीं, सो दैट आई कैन हेड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट वन। और जब हम चैल्कोलिथिक फेस की चर्चा कर रहे हैं बेटा, तो मैंने चैल्कोलिथिक फेस के कंटेक्स्ट में आपसे कहा एक ऐसा फेस जिस फेस में स्टोन के साथ साथ व्यक्ति ने क्या यूज करना स्टार्ट कर दिया है, तो बोले सर स्टोन के साथ साथ व्यक्ति ने मेटल जो है वह यूज करना स्टार्ट कर दिया। प्रीहिस्टोरिक मैन यूज्ड कॉपर एंड लो ग्रेड ब्रॉन्ज with these stone tools. Hence, the Chalcolithic means is copper stone age. That's what we had discussed by yesterday. This stage applied to the pre-Harappan. मैंने कल बहुत स्पष्ट तौर पर मोहिनी जी और हमारे सभी दूसरे छात्र छात्रा ये कहा कि भाई सामान्यता अगर आप देखेंगे तो सामान्यता हमें क्या नजर आता है, तो कॉपर एज जो है चैल्कोलिथिक पीरियड जो है वो किसके पहले का पीरियड है, तो यह प्री हड़प्पन पीरियड है। लेकिन हमारी कंट्री में आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस जो हैं, इनकी फाइंडिंग्स जो हैं उसमें यूनिफॉर्मिटी नजर नहीं आती है और इसका ही परिणाम है, इसका ही रिजल्ट है कि कई बार कंट्री के कई हिस्सों में हमें चैल्कोलिथिक कल्चर जो है वो ब्रॉन्ज कल्चर के बाद हड़प्पन कल्चर के बाद नजर आता है। ये कल हमने डिस्कस किया हुआ था। इस फेस में कई सारे डेवलपमेंट्स हमें नजर आ रहे हैं। अगर हम देखें कैसे डेवलपमेंट्स नजर आ रहे हैं, तो बोले सर रूरल कम्युनिटीज जो हैं, rural communities witnessed inequalities। जो हमारी ग्रामीण कम्युनिटीज हैं, संप्रदाय हैं, उनमें हमें क्या नजर आ रहा है, बोले सर अब यहीं से इनइक्वलिटीज जो है वो नजर आना स्टार्ट हो गई। अगर हम इनके फूड हैबिट्स पर, डाइटरी हैबिट्स पर चर्चा करें, फिश एंड द राइस वाज देयर पार्ट ऑफ डाइट। फिश एंड rice was their dietary part। ये जो इनका डाइटरी पार्ट है वो कौन सा है, तो बोले सर एक फिश और राइस जो है इनकी डाइट का हिस्सा थे। हालांकि मीट भी खा रहे, बीफ भी ये खाते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं लिख देता हूं यहां पर, दे ऑल्सो एट फ्लैश। ठीक है, इन्होंने ये मीट जो है यह भी खाया, और रश्मि जी, राधा जी, गिरिराज जी, महिमा जी, नितिन जी और हमारे सभी दूसरे छात्र छात्र हैं। आपने निश्चित तौर पर सुना होगा लोटा शब्द एक। ठीक है, तो ये उस समय में क्या यूज कर रहे थे, बोले सर दे यूज्ड लोटा एंड थाली, है ना। तो इन्होंने ये लोटा और थाली जो है इसका इस्तेमाल किया है। एम आई वेरी क्लियर टू ऑल द पर्संस। अगर हम कॉटन के प्रोडक्शन की चर्चा करें कि कॉटन जो है इस पर्टिकुलर समय में कहां प्रोड्यूस हो रहा है, तो कॉटन वाज प्रोड्यूस्ड इन द सदर्न रीजन। कॉटन वाज प्रोड्यूस्ड इन सदर्न रीजन। इस पर्टिकुलर फेस में कॉटन जो है वह सदर्न रीजन में क्या किया जा रहा है, बोले सर प्रोड्यूस किया जा रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, अब जब कॉटन है तो इसका मतलब नितिन जी, गिरिराज जी, पूर्णिमा जी, लोगों के पास आइडिया है, नैन्सी जी, both the Nancy's, both the Salnis, both the Asutosh, both the Priyankas and all my peoples, those who are connecting here। तो ऑब्वियस सी बात है, जब उनके पास प्रेजेंस ऑफ कॉटन है और अबंडेंस में इनके पास कॉटन है, तो ये एक आर्ट फॉर्म से परिचित है। The peoples were having idea about the spinning, weaving। Am I very clear to all the persons, those who are connecting here? क्या आप सभी छात्र छात्राओं को मैं बिल्कुल पूरी तरह से क्लियर हूं कि अगर इनके पास कॉटन है तो इसका मतलब है कि स्पाइनिंग का टास्क जो है, वीविंग का टास्क जो है उससे परिचित हैं, एज वेल एज एंड कॉपर स्मेल्टिंग very clear to all the persons with the very same। हमने न्यूलिथिक पीरियड में चर्चा करी थी कि न्यूलिथिक पीरियड के जो हाउसेस हमें नजर आ रहे हैं, वह न्यूलिथिक पीरियड के हाउसेस हमें किसके बने हुए नजर आ रहे हैं? श्वेता जी, एग्जैक्टली कॉपर ही जो है सबसे पहला मेटल रहा है जिसका इन्होंने यूज किया है। हालांकि ये लो ग्रेड ब्रॉन्ज का भी यूज कर रहे थे, तो हमारे पास ऐसा कुछ बहुत स्पेसिफिक आइडिया नहीं है, लेकिन कॉपर की प्रेजेंस रही है।
तो निश्चित तौर पर ये लोटा और थाली जो है उसी का इस्तेमाल कर रहे होंगे। या हो सकता है ये आपकी मिट्टी के जो है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बिकॉज हमारे पास रिटर्न सोर्सेज नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। आशुतोष जी, समाज में हमें क्या नजर आ रही है? समाज में हमें इनइक्वलिटीज नजर आ रही है। आप अभी भी देख रहे हैं कि इसमें क्या किया जा रहा है। वो सर इनके हाउसेस जो है वो मड ब्रिक्स के बने हैं। कई सारे लोग जो हैं अभी भी किस में रह रहे होंगे? बोले सर कई सारे लोग जो हैं अभी भी झोपड़ियों में रह रहे होंगे। अगर हम आशुतोष इनइक्वलिटीज की चर्चा करते हैं तो इनइक्वलिटीज की चर्चा किस आधार पर करी जाती है मेरे भाई? एक्सेसिबिलिटी के आधार पर करी जाती है कि आप कितनी चीजों को एक्सेस कर पा रहे हैं। आपके पास जो सोशल प्रेजेंस है, मटेरियलिस्टिक प्रेजेंस जो है, उस मटेरियलिस्टिक प्रेजेंस पर आपका एक्सेस कितना है? कई लोगों के पास मेटल है, कई लोगों के पास अभी भी वो स्टोन और स्टोन टूल्स जो है उन पर ही डिपेंडेंट है। कई बहुत प्रॉस्पेरस हो गए बिकॉज दे वर द पार्ट ऑफ द सेवरल अदर ऑक्यूपेशंस एज वेल। और एट द सेम टाइम अगर हम चर्चा करेंगे तो कई सारे लोग जो हैं अभी भी क्या कर रहे हैं? बोले सर स्टोन टूल्स के आधार पर ही अपने जीवन को आश्रित हैं, अर्न कर रहे हैं। तो इस वजह से हम चर्चा कर रहे हैं कि भाई इस समय का जो पीरियड है उसमें कम्युनिटीज में हमें क्या नजर आ रहा है? बोले सर सोशल इनइक्वलिटीज नजर आ रही है। आशुतोष जी, am I very clear to you? Am I very clear to all the persons those who are connecting? You people can let me know. अभी भी अगर हम हाउसेस की चर्चा करें, हमने न्यूलिथिक पीरियड में डिस्कस किया था कि हाउसेस किसके बने हुए थे? बोले सर मड ब्रिक्स के बने हुए थे। हाउसेस पर मेड अप ऑफ मड ब्रिक्स। तो हमें अभी भी हाउसेस जो है वो मड ब्रिक्स के ही नजर आ रहे हैं। आशुतोष जी, गिरिराज जी, नैन्सी जी और हमारे सभी दूसरे छात्र छात्राएं, हमें यहां से यह समझना होगा, नो बर्न्ड ब्रिक्स। एम आई वेरी क्लियर? नो बर्न्ट और बेक्ड ब्रिक। ये हमें ज्यादा जरूरी है समझ पाना, क्योंकि ये कैरेक्टरिस्टिक कहां जनरेट होता है? विशाल जी, अंजलि जी, आकांक्षा जी, खुशबू जी, श्वेता जी, नितिन जी, एक कैरेक्टरिस्टिक की जो जनरेशन है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन में है। एम आई वेरी क्लियर टू ऑल द पर्संस विद द वेरी सेम? यू पीपल कैन लेट मी नो। हाउसेस के अगर हम शेप पर चर्चा करेंगे तो हाउसेस के शेप हमें कैसे नजर आ रहे हैं? तो बोले सर अगर हम शेप पर चर्चा करने जा रहे हैं तो इनके शेप जो है या तो रेक्टेंगुलर नजर आ रहे हैं। हाउसेस के शेप जो है या तो रेक्टेंगुलर हमें नजर आ रहे हैं, या फिर ये हमें सर्कुलर जो है तो वो है सर्कुलर नजर आ रहे हैं। इवन विशाल जी, आपको जानकर बड़ा अच्छा लगेगा और हमारी सभी दूसरे छात्र छात्राएं जो हैं उनको जानकर बड़ा अच्छा लगेगा। ऐसा माना जाता है, श्वेता जी, ऐसा माना जाता है कि गोल्ड जो है, गोल्ड वॉज दी गोल्ड वॉज प्रोबेबली gold was probably one of the earliest discoveries, one of the earliest discoveries. Am I very clear to all the persons those who are connecting? मैंने ये नहीं कहा कि भाई ये सब, अरे अमन जी, आईवीसी ओवरलैप करना ही नहीं है, इसीलिए तो मैं कल से मोहिनी जी को समझा रहा था और अभी आपको फिर से आपको भी समझा रहा हूं कि ये हमें समझना है कि ये हमारे पास ना इसके रिटर्न सोर्सेस नहीं है। तो मैंने इसीलिए वो वाला पॉइंट आपसे कहा था। क्या कहा था मैंने आपसे? कि बेसिकली इन जनरल हम जब चर्चा करते हैं तो इन जनरल हमें क्या नजर आ रहा है? चैल्कोलिथिक पीरियड जो है वो प्री हड़प्पन है, लेकिन चैल्कोलिथिक के डेवलपमेंट्स जो हैं वो आपको हड़प्पन वाले फेस में नजर आएंगे कि नहीं आएंगे? अमन जी जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए। किसी एक चीज का जब जनरेशन है तो वो उसका जनरेशन वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आगे डेवलप ही होगा, खत्म कैसे होगा? और चूंकि मैं आईवीसी का इस्तेमाल बार बार इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मेरा अगला टॉपिक जो है वो आईवीसी है। और अगर अमन हम इसको ओवरलैप नहीं करेंगे तो क्या ब्रॉन्ज का एग्जिस्टेंस जो है अमन, वो बिना कॉपर और टिन के पॉसिबल है? अमन जी जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए, क्या ब्रॉन्ज का जो एग्जिस्टेंस है वो बिना कॉपर और बिना टिन के का पॉसिबल है? तो कैरेक्टरिस्टिक्स पे ज्यादा ध्यान देना है हमें कि हमें किस तरीके के कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो नजर आए हैं। आगे बढ़ रहा हूं कि ध्यान से देखने सुनने समझने का प्रयास करिए। ये हम कंपैरिजन पढ़ रहे हैं। मैंने कहा था ना कि लॉजिक नहीं लगाने बहुत ज्यादा,
हाँ, इतिहास के कंटेक्स्ट में जो डेवलपमेंट्स रहे हैं उन डेवलपमेंट्स को आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स के आधार पर समझना है। प्री हिस्ट्री में कैसे रहा व्यक्ति, आदि मानव जब था, जब चार पैरों से चल रहा था, तो वह कैसे रहा, पैलेलिथिक फेस में कैसा था, मीसोलिथिक फेस में कैसा था, न्यूलिथिक फेस में कैसा था। और जब अब उसके पास अमन कॉपर आ गया है, जब उसके पास लो ग्रेड ब्रॉन्ज आ गया है, जब उसके पास अभी गोल्ड का डिस्कवरी है, तो इस पर्टिकुलर समय में वह कैसा हो गया है। तो बस हम इन चीजों पर चर्चा कर रहे हैं। बेसिकली हिस्ट्री इज ऑल अबाउट द ह्यूमन इवोल्यूशन। हिस्ट्री जो है वो क्या है बोले सर, खासकर एंशियंट हिस्ट्री क्या है बोले सर, ह्यूमन इवोल्यूशन की स्टोरी है। तो हम उसी पर आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। जस्ट ट्राई टू हियर मी आउट। अभी आईबीसी जब हम पढ़ेंगे ना मेरे भाई, तो आपको बहुत सारी चीजें जो है वो क्या होगा, आप इंटरलिंक कर पाएंगे। अभी आईबीसी को मत लाइए, जहां तक मैं आईबीसी लेकर चल रहा हूँ सिर्फ वहां तक सोचने का प्रयास करें। गोल्ड वॉज प्रोबेबली वन ऑफ द अर्लीस्ट डिस्कवरीज, but but it served it served as a material for ornaments only, but it served as a material for ornaments only. अब अभी आशुतोष रघुवंशी जी, आपने मुझसे पूछा कि सर समाज में इनइक्विलिटीज कैसे नजर आ रही थी हमें, तो आप निश्चित तौर पे समझ पा रहे हैं कि भाई गोल्ड की प्रेजेंस है, और जब गोल्ड की प्रेजेंस है तो ऑब्वियस सी बात है कि आज भी कहीं सबके पास गोल्ड नहीं होगा। अगर हम हमारे साथ जो भी छात्र छात्राएं कनेक्ट कर रहे हैं, और इवन आप मुझे भी मिला लें, तो कई सारे हमारे छात्र छात्राएं होंगे जिनके पास आपको पर्याप्त गोल्ड नजर आता है। कई सारी फैमिलीज होंगी जिनके पास पर्याप्त गोल्ड आपको नजर आता है, लेकिन सबके पास नहीं है। तो यही तो क्या है बोले सर, इनइक्विलिटीज जो है उन इक्विलिटीज को जनरेट कर रहा है। तो जैसे जैसे मटेरियलिस्टिक चीजों की अबंडेंस होती चली जाएगी, वैसे वैसे ये चीजें जो हैं वह क्या होता चला जाएगा बोले सर, वैसे वैसे चीज हमें इनइक्विलिटीज जो है वह जनरेट होते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल निवेदिता से हेडिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट आगे बढ़ रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। और अगर हम इस पर्टिकुलर फेज के रश्मि जी, चलिए कमिंग टू दिस ओनली। अब अगर हम, जैसे निवेदिता जी ने पूछा कि सर साउथ में सेटलमेंट नजर आ रहे थे इसके, या गोल्ड जो है वो हमें साउथ से ही नजर आ रहा था। बिल्कुल, अभी है ना वो जो एक मूवी बनी हुई थी केजीएफ, वो तो साउथ में ही बनी हुई थी निवेदिता जी। वापस आ रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। तो हम इनके थोड़े से सेटलमेंट्स को समझेंगे कि भैया इनके सेटलमेंट्स जो हैं वो सेटलमेंट्स कहाँ मिले हैं हमें। सेटलमेंट्स बिलोंगिंग टू दिस पर्टिकुलर पीरियड, बिलोंगिंग टू दिस पर्टिकुलर पीरियड, दिस पर्टिकुलर पीरियड। बोलिए सर ये सेटलमेंट्स कहां कहां पर है, हैव बीन फाउंड इन, हैव बीन फाउंड इन साउथ ईस्टर्न राजस्थान, साउथ ईस्टर्न राजस्थान। ये कहां नजर आ रहे हैं, तो बोले सर एक तो ये हमें साउथ ईस्टर्न राजस्थान में नजर आ रहे हैं। वेस्टर्न मध्य प्रदेश का हिस्सा है ये। किस मध्य प्रदेश का हिस्सा है, बोले सर वेस्टर्न मध्य प्रदेश का ये हिस्सा है। महाराष्ट्र का, बोले कौन से वाले, बोले सर वेस्टर्न महाराष्ट्र का ये हिस्सा है। वेस्टर्न महाराष्ट्र में हमें इसकी कुछ साइट्स नजर आई हैं। और साथ ही साथ जब हम चर्चा करने जा रहे हैं, बोले सर ईस्टर्न इंडिया, ईस्टर्न इंडिया, यहां पर हमें क्या नजर आई हैं, बोले सर चालकोलिथिक पीरियड की जो है साइट्स यह हमें नजर आई हैं। Am I very clear to all the persons those who are correcting here? You people can let me know. जल्दी से मुझे कमेंट कर दीजिए, क्या मैं आप सभी छात्र छात्राओं को बेहद स्पष्ट हूं। अब जब हम साउथ ईस्टर्न राजस्थान की चर्चा कर रहे हैं, तो साउथ ईस्टर्न राजस्थान ये हमें कहां से नजर आ, बोले यहां से हमें क्या नजर आ रहा है, तो बोले सर यहां से आहार एंड गिलुंद, ये हमें साउथ ईस्टर्न राजस्थान से नजर आ रहा है। ये आपके दिमाग में होना चाहिए। मालवा, कायथा एंड ईरान कल्चर की जब हम चर्चा करते हैं, मालवा, कायथा एंड ईरान कल्चर, तो इसका प्रेजेंस हमें कहां से नजर आ रहा है, तो बोले सर इसका एसोसिएशन हमें वेस्टर्न मध्य प्रदेश के साथ एसोसिएटेड नजर आ रहा है। और इवन अगर आप मालवा वेयर की अभी करेंगे, मालवा पर हम चर्चा,
अगर इसके बाद जाकर हम जॉर्वे कल्चर पर चर्चा करें, ये हमें जॉर्वे कल्चर नजर आ रहा है, हमें निवासा कल्चर नजर आ रहा है, दायमाबाद हमें नजर आ रहा है, दायमाबाद नजर आ रहा है, हमें चंदोली नजर आ रहा है। एट द सेम टाइम हमें इनाम गांव जो है, आप कह सकते हैं सोन गांव, इनाम गांव, तो इन सब का संबंध जो है वो है कहां से नजर आ रहा है? तो बोले सर इन सब का संबंध जो है वो है हमें आपके वेस्टर्न महाराष्ट्र से नजर आ रहा है। एम आई वेरी क्लियर टू ऑल द पर्संस दोस हु आर कनेक्टिंग? यू पीपल कैन लेट मी नो, जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए। पुणे, बिल्कुल इनाम गांव पुणे की हम चर्चा कर रहे हैं। अमन जी, वेरी क्लियर टू ऑल द पर्संस दोस हु आर कनेक्टिंग, यू पीपल कैन लेट मी नो। इन जनरल अगर हम चर्चा करें तो ये पूरा, अगर इसके डेवलपमेंट पर अगर हम यूकेएस की चर्चा करें तो ये पूरा कल्चर जो जनरेटेड है, इसका एग्जिस्टेंस, इसका डेवलपमेंट, दिस कल्चर, दिस जॉर्वे कल्चर, हम जॉर्वे कल्चर की चर्चा कर रहे हैं, ओड मच टू दी, ओड मच टू मालवा कल्चर, मतलब हमें मालवा कल्चर जैसी सिमिलैरिटीज जो है इसमें नजर आ रही हैं। और ऑब्वियस सी बात है, जो मध्य प्रदेश का ज्योग्राफिकल डिवीजन समझते हैं वह निश्चित तौर पर समझ पाते होंगे कि यह कैसे मालवा कल्चर में और जॉर्वे कल्चर में हमें सिमिलैरिटीज नजर आती हैं। Am I very clear to all the persons those who are connecting here? People can let me know. अगर हम इस पर्टिकुलर समय में लोगों के बारे में चर्चा करने जाएं, पीपल यूज टिनी टूल्स, पीपल यूज द टिनी टूल्स, मतलब बहुत छोटे छोटे टूल्स जो हैं वह उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। एंड वेपन्स मेड अप ऑफ स्टोन, एंड वेपन्स मेड अप ऑफ स्टोन, और किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? बोले सर स्टोन टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, ब्लेड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, ब्लेडलेट्स टूल्स जो हैं इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आपके लिए दिमाग में होना चाहिए। और अगर इनकी हम पॉटरी पर चर्चा करें तो सामान्यतः इनकी पॉटरी जो है वह कैसी नजर आ रही है, इनके टूल्स जो है वह कैसे नजर आ रहे हैं? मेनली यूज्ड ब्लैक एंड रेड वेयर, ब्लैक एंड रेड वेयर पॉटरी एंड द टूल्स आर। तो ये कुछ 10 पॉइंट हमने डिस्कस करे हैं किसके बारे में? बोले सर हमने 10 पॉइंट तकरीबन तकरीबन डिस्कस करे हैं आपके चालकोलिथिक कल्चर के बारे में। एक बार मुझे जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए, क्या कोई ऐसा पॉइंट है जो आपको समझ नहीं आया हो या आपके दिमाग में आप दोबारा जानना चाहें, पूछना चाहें? You people can feel free to put forward your questions. Definitely you would be responded. And that is something, the best quality of our platform only. एथ पॉइंट रिपीट कर दीजिए। इनकी जब हम सेटलमेंट्स को समझने जा रहे हैं ना तो बेटा श्वेता जी, सेटलमेंट्स इनके अलग अलग जगह पे हमें नजर आ रहे हैं। आपको एक पॉइंट समझना है, जैसे अभी मैंने आपसे कहा था श्वेता, किसके बारे में मैंने आपसे कहा? मैंने कहा कि सर सामान्यतः अगर आप देखेंगे तो ये प्री हड़प्पन है बेटा, लेकिन भारत में कई जगह इनके इनकी पॉटरी जो है वो रेड एंड वेयर है, मतलब इनके जो बर्तन होते थे या इनके जो टूल्स होते थे पॉलिश्ड टूल्स हैं, तो अधिकांशतः खुशबू कैसा इस्तेमाल कर रहे हैं? रेड वेयर, मतलब या तो रेड कलर के या ब्लैक कलर के। हम मिट्टी की चर्चा नहीं कर रहे। श्वेता जी, अब 8th पॉइंट पर आ रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स। चूंकि जॉर्वे कल्चर, मालवा कल्चर, आहार कल्चर, इनकी पॉटरी में कलर डिफरेंसेस हमें नजर आ रहे हैं। तो डिफरेंसेस के आधार पर हमने क्या कहा कि भाई ये चालकोलिथिक कल्चर स्पेसिफिकली राजस्थान वाले रीजन से नजर आ रहा है, हमें मध्य प्रदेश वाले रीजन से नजर आ रहा है, महाराष्ट्र वाले रीजन से हमें नजर आ रहा है, ये हमने कहा है। और महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश वाले रीजन में जो मालवा कल्चर है और जॉर्वे कल्चर है उनमें हमें सिमिलैरिटीज नजर आ रही हैं। Am I very clear to you, Sweta ji? Am I very clear to all the persons, those who are correcting? You people can let me know so that I can head forward to the next one, ताकि हम आगे बढ़ सकें। जल्दी से मुझे कमेंट कर दीजिए। चलिए ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट, आगे बढ़ रहा हूं, ध्यान से देखने, सुनने, समझने का प्रयास करिएगा। मेरे पास कुछ स्लाइड्स हैं इसको लेकर, आप पीडीएफ के माध्यम से उन स्लाइड्स को देख सकते हैं चालकोलिथिक कल्चर के बारे में। देखिए
जस्ट गिव मी अ सिंगल मिनट। ये हमने बिहार की कंटेक्स्ट में क्या जो हमारी चैल्कोलिथिक साइट्स हैं उनको डिस्कस किया था, प्लीज डू लेट मी नो। क्या हमने बिहार की कंटेक्स्ट में जो हमारी चैल्कोलिथिक साइट्स हैं इनको डिस्कस किया था? सॉरी, न्यूलिथिक साइट्स से माफ कीजिएगा, इनको डिस्कस किया था? कल के सेशन में हमने न्यूलिथिक कैरेक्टरिस्टिक्स को समझा और एट द सेम टाइम हमने जो न्यूलिथिक साइट्स रहे हैं उन न्यूलिथिक साइट्स को हमने समझा कि ये हमारी इन जनरल न्यूलिथिक साइट्स है। मैं यहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ, देख लीजिएगा, कोई बात नहीं, आई एम गोइंग टू हैव डिस्कशन ओवर दैट एज वेल। न्यूलिथिक सेटलमेंट्स इनटू द इंडिया, तो नॉर्थ वेस्ट कश्मीर में वेपन्स व्हिच वर मेड अप ऑफ द बोन्स, ये हमें नजर आ रहे हैं। और बुरजाहूम जो है वो एक न्यूलिथिक साइट है। डोमेस्टिक डॉग्स वर बरीड विद देयर मास्टर्स। नॉर्थ ईस्ट में अगर आप चर्चा करने से आ रहे हैं तो जो आसाम हिल्स हैं वह न्यूलिथिक सेटलमेंट का एग्जांपल है। गारो हिल्स जो है मेघालय में, वह किसका उदाहरण है? बोले सर वह भी न्यूलिथिक सेटलमेंट है। साउथ साउथ ऑफ रिवर गोदावरी, जब आप बोन टूल्स की चर्चा कर रहे हैं, ये हमारा चिरांद बिहार, अभी हम इस पर चर्चा करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट साइट है भाई, बेहद इंपॉर्टेंट है। मस्की, ब्रह्मगिरी, हलूरियन, ए कर्नाटक के साथ एसोसिएटेड है। पैमपली तमिलनाडु के साथ एसोसिएटेड है और एक न्यूलिथिक साइट है। उटनूर जो है वह आंध्र प्रदेश के साथ एसोसिएटेड है। आप इन सभी साइट्स को मैप के माध्यम से भी देख सकते हैं कि ये हमें मेहरगढ़ नजर आ रहा है। मैंने मेहरगढ़ के कंटेक्स्ट में आपसे कहा था ओल्डेस्ट साइट इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। प्रशांत जी, नैन्सी जी, अमन जी, आशुतोष जी और हमारे सभी दूसरे छात्र छात्राएं, जब हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट की चर्चा कर रहे हैं तो इसका मतलब है हम पाकिस्तान और इंडिया इनको कलेक्टिवली चर्चा कर रहे हैं। एम आई वेरी क्लियर टू ऑल द पर्संस विद द वेरी सेम? यू पीपल कैन लेट मी नो। हम विभाजन के पहले के हिंदुस्तान पर चर्चा कर रहे हैं। और अगर हम सिर्फ भारत की चर्चा करें तो भारत के कंटेक्स्ट में हमें क्या नजर आ रहा है? तो भारत के कंटेक्स्ट में हमें बुर्जा होम नजर आ रहा है। ये सबसे पहली साइट है, फर्स्ट इंडियन न्यूलिथिक साइट। ये हमें चिरांद नजर आ रहा है, कोल्डी हावा नजर आ रहा है, पैमपली है, हलूर है। So right now heading forward to the next stuff and you people can hear me out over this as well. The cultivation of grains enabled the Neolithic people to build permanent dwellings up and congregate in villages up. And that's what Khushbu Yogesh we had discussed by yesterday. And the release from the nomadism and the hunting gathering economy gave them to pursue the specialized craft. नैन्सी जी, खुशबू जी और हमारे सभी दूसरे छात्र छात्राएं, लक्ष्मी, नोमेडिज्म का कैरेक्टर और साथ ही साथ हंटिंग गैदरिंग का कैरेक्टर अब बहुत पीछे छूट चुका है। अभी आगे बढ़ गए हैं सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी की ओर। और जब हम सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी की जब चर्चा कर रहे हैं तो एग्रीकल्चर सरप्लस हो गया है और कई सारे ऑक्यूपेशंस जो है वो जनरेट हो गए। आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस indicates that transition from food collecting culture to the food producing one gradually occurred. प्रियंका जी, क्या आप क्लास का हिस्सा हैं? प्रियंका झा जी, जिन्होंने मैं रिसेंटली ज्वाइन किया, एक बार मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या ये सारी चीजें जो हमने अभी डिस्कस करी हैं आपको क्लियर है? यहां आपसे कहा जा रहा है कि फूड कलेक्टिंग जो स्टेज हुआ करती थी हमारी, अब हम उससे फूड प्रोड्यूसिंग स्टेज की ओर बढ़ चुके हैं। ठीक है। Term Neolithic Revolution was introduced by V. Gordon Child in 1936, and that's what we had discussed by yesterday only. हमने कल के सेशन में ही डिस्कस किया था बेटा कि वी गॉर्डन चाइल्ड ने क्या किया है। बोले सर वी गॉर्डन चाइल्ड ने ये आपका एक टर्म दिया है जिसे हम न्यूलिथिक रिवॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। वी गॉर्डन चाइल्ड डिफाइंड द न्यूलिथिक chalcolithic culture as self-sufficient food producing economy. The change in the economic mode and the lifestyle from hunting, gathering, foraging to the primitive farming appeared so abruptly that this overall change in the human life is often referred as the Neolithic Revolution. महिमा जी, प्रियंका जी, नैन्सी जी, नितिन जी, गिरिराज जी, हरिओम जी, देवांश जी और हमारे सभी छात्र छात्राएं, ये अचानक से डेवलपमेंट हुए हैं। अचानक से हमने हंटिंग गैदरिंग जो है बंद कर दी और अचानक से हमने क्या करना स्टार्ट कर दिया, एग्रीकल्चर पर पूरी तरह से फोकस्ड हो गए, कई सारे दूसरे ऑक्यूपेशंस जनरेट कर लिए। तो ये जो चेंज है वो बहुत सडन है बेटा। श्वेता जी, खुशबू जी, आकांक्षा जी,
और इसी के चलते हुए हम इसे न्यूलिथिक रिवॉल्यूशन कंसिडर कर रहे हैं। Slowly in the course of time, the later Neolithic period with discovery of smelting and creation of copper tools have identified as Chalcolithic period, and that's what अभी हम इतनी देर से ही चर्चा कर रहे थे भैया। मध्य प्रदेश के कंटेक्स्ट में अगर आप देखेंगे तो मैंने आपसे कहा कुंजुन जो सीधी डिस्ट्रिक्ट के साथ एसोसिएटेड है, एक ऐसी साइट है, बोले सर यह एक न्यूलिथिक साइट है। इन साइट्स पर हमें अभी चर्चा नहीं करनी है, हम मध्य प्रदेश का इतिहास लेके चल रहे हैं, हम वहां चर्चा करेंगे। कुछ जो बिहार स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं, बिहार स्पेसिफिक पॉइंट्स की ओर मैं आ रहा हूं, बहुत ध्यान से देखने सुनने समझने का प्रयास करिएगा। न्यूलिथिक न्यू स्टोन एज एविडेंस हैज डिस्कवर्ड फ्रॉम चिरांद सारण डिस्ट्रिक्ट एंड छिछर वैशाली डिस्ट्रिक्ट। न्यूलिथिक पीरियड के गिरिराज जी, नितिन जी, क्षमा जी और हमारे सभी एमपीपीएससी के छात्र छात्र हैं, आपके लिए बड़ा शानदार एक अवसर है। आप हिस्ट्री को बहुत ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से पढ़ सकते हैं अब। और हमारे बीपीएससी के छात्र छात्र हैं, आप बिहार स्पेसिफिक पॉइंट्स को हाईलाइट कर लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए, मार्क कर लीजिए कि जब हम न्यूलिथिक सेटलमेंट की चर्चा कर रहे हैं तो ये जो चिरान सारण डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा है और छेछर ये जो वैशाली डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा है, न्यूलिथिक सेटलमेंट्स है। Neolithic period was followed by Chalcolithic metal age. It was the time when human begins using metal along with the stone. First metal used by humans was copper, and hence this age was also called as a copper stone age. A number of Chalcolithic sites have been discovered in various parts of the country. और इन पार्ट्स में जो हमारा बिहार वाला रीजन है, उस बिहार वाले रीजन में भी कई सारे हिस्सा, कई सारी साइट्स हमें नजर आ रही है। श्वेता जी, अभी मैंने आपसे कहा था, अभी आपने मुझसे 8th पॉइंट जो है उसको रिपीट करने के लिए कहा था। तो मैंने कहा कि भाई देखिए, सदर्न राजस्थान है, वेस्टर्न मध्य प्रदेश है, वेस्टर्न महाराष्ट्र है और ईस्टर्न इंडिया है। तो जब हम ईस्टर्न इंडिया की चर्चा कर रहे हैं तो देखिए हम बिहार की चर्चा कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट Chalcolithic साइट्स इन बिहार रीजन इंक्लूड्स चिरान जो सारण जिले का हिस्सा है, मुनेर, पटना, चंपा, भागलपुर, छेछर, कुतुबपुर, वैशाली डिस्ट्रिक्ट की हम चर्चा कर रहे हैं और तड़ीदिया ये हमारे गया डिस्ट्रिक्ट के साथ एसोसिएटेड है। प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स have been discovered from Kamur region, Nawada region and Jamui region of Bihar as well. और यहां से हमें क्या नजर आता है? कैमूर रीजन से, नवादा रीजन से, जमुई रीजन से हमें कुछ यहां से रॉक पेंटिंग्स नजर आती हैं which depicts the lifestyle of the prehistoric man. The picture depicts human activities like dancing, hunting, walking, etc. Out of the prehistoric sites, Chirand is the most important site that has evidence of unbroken historical and cultural sequences down to the present day. Very clear to all the persons, those who are correcting here. You people can let me know. जल्दी से मुझे कमेंट कर दीजिए कि मैं आप सभी छात्र छात्राओं को बेहद स्पष्ट हूं। अब जब हम प्री हिस्टोरिक साइट्स की चर्चा करते हैं तो मैंने आपसे प्री हिस्टोरिक पीरियड के कंटेक्स्ट में कहा था कि इसे हम 3 एजेस में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक हमारा कॉपर एज है, एक हमारा ब्रॉन्ज एज है और एक हमारा आयरन एज है। हम इन तीनों में से क्लासिफाई, स्टोन एज है माफ कीजिएगा, कॉपर एज है और आयरन एज है, इसमें हम क्लासिफाई करते हैं। तो हम प्री हिस्टोरिक साइट्स ऑफ बिहार की जब चर्चा कर रहे हैं इसमें हमें चिरांद की सबसे इंपॉर्टेंट बेसिस पे चर्चा करनी है बेटा। जैसे कल हम मध्य प्रदेश पढ़ रहे थे तो हमने भीमबेटिका पर चर्चा करी थी। जितना इंपॉर्टेंट मध्य प्रदेश वालों के लिए भीमबेटिका है जो कि रायसेन जिले में सिचुएटेड है, उतना ही इंपॉर्टेंट हमारे बिहार वाले छात्र छात्राओं के लिए चिरांद साइट है। कई बार आपसे मेंस में सीधा पूछा जा सकता है कि ये जो चिरांद साइट है इसके बारे में एक्सप्लेन करिए। चिरांद इज एन आर्कियोलॉजिकल साइट व्हिच इज इन द सारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार and having its location on the northern bank of the Ganga river. किस नदी पर बेस्ड है? बोले सर गंगा नदी पर लोकेटेड है। The excavation in the Chirand have revealed stratified Neolithic, Chalcolithic and Iron Age settlement as well. अब अमन जी, जब हम इस पीरियड की चर्चा कर रहे हैं मेरे भाई, तो देखो हमें न्यूलिथिक पीरियड नजर आ रहा है, मतलब स्टोन एज नजर आ रहे हैं। हम जब कॉपर की बात कर रहे हैं, चालकोलिथिक पीरियड की बात कर रहे हैं, तो कॉपर एज भी नजर आ रही है और इवन आयरन एज के साथ भी, मतलब वैदिक पीरियड के साथ भी हमें एसोसिएशन नजर आ रहा है। एम आई वेरी क्लियर टू ऑल द पर्संस की इतिहास में बिना ओवरलैपिंग किए तो कुछ हो ही नहीं सकता।
जल्दी से मुझे कमेंट कर दीजिए क्या मैं आपको क्लियर हूं। एंड प्रोवाइड द डिटेल्स अबाउट द ट्रांजिशन इन ह्यूमन हैबिटेशन पैटर्न्स फ्रॉम अराउंड 2500 टू द 30 एडी। 2500 से लेकर 30 के डेवलपमेंट्स हमें यहां से नजर आ रहे हैं। अब जब हम फाइंडिंग्स की चर्चा करें कि हमें ऐसे क्या क्या चुनान से नजर आया है, a large prehistoric mound which is known for its continuous archaeological record from the Neolithic age। एक मड माउंड हमें नजर आया है, मिट्टी का टीला सा हमें नजर आया है। जिस मिट्टी के टीले से हमें क्या समझ आ रहा है, जिस मिट्टी के टीले से हमें लगातार आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस एविडेंसेस जो है वो मिलते रहते हैं, रिकॉर्ड्स मिलते रहते हैं जो प्री हिस्टोरिक पीरियड के साथ एसोसिएटेड है, न्यूलिथिक पीरियड के साथ एसोसिएटेड है। और कहां तक बोले सर, पाल डायनेस्टी तक। एक्सिस मेड अप ऑफ क्वार्टजाइट, बेसाल्ट एज वेल एज ग्रेनाइट रॉक्स, पैडी हस्क इंप्रेशंस, कुछ चावल के ट्रेसेस भी हमें नजर आए हैं, ज्वार के ट्रेसेस भी नजर आए हैं, एविडेंस ऑफ यूज ऑफ कॉपर एज वेल एज आयरन। सो दीज आर द फाइंडिंग्स फ्रॉम द चिरान एंड यू मस्ट बी थरोली क्लियर इन कंटेक्स्ट ऑफ द एविडेंसेस। कैच ऑफ 88 कुसान पीरियड पॉइंट्स, कुछ ट्रेसेस हमें नजर आ रहे हैं किसके, बोले सर जो कुसान पीरियड अभी हम पढ़ेंगे आगे। बोले सर कुसान पीरियड हम कब पढ़ेंगे, क्योंकि अभी आपने कहा कि भैया 2500 से लेकर 30 एडी तक के डेवलपमेंट नजर आ रहे हैं। तो आगे जाकर जब हम कुसान पीरियड पढ़ेंगे, मतलब पोस्ट मॉडर्न पीरियड में, पोस्ट मॉडर्न पीरियड में जब हम फॉरेन इन्वेजन्स को पढ़ेंगे, जिसमें हम इंडो ग्रीक इन्वेजन पर चर्चा करेंगे, सकास पर हम चर्चा करेंगे जिन्हें हम साइकेथियंस के नाम से कंसीडर करते हैं, पार्थियंस पर हम चर्चा करेंगे, वहीं हम कुसान डायनेस्टी पर भी चर्चा करेंगे। तो उस पर्टिकुलर समय में हमें क्या नजर आ रहा है, बोले सर चिरान से हमें कुसान पीरियड के कुछ कॉइन्स नजर आए हैं, हैंडमेड पॉटरी के ट्रेसेस नजर आ रहे हैं। ये किस शेप के नजर आ रहे हैं, बोले सर ऑब्लोंग शेप्ड ओवन्स के हमें ट्रेसेस नजर आ रहे हैं। पेंडेंट्स, ईयर इयरिंग्स, बैंगल्स, डिस्क, कॉम्ब, मतलब हमें ऑर्नामेंट्स नजर आ रहे हैं जो रेगुलर बियर, रेगुलर यूज के ऑर्नामेंट्स रहे हैं, मटेरियल्स रहे हैं, वो नजर आ रहे हैं। टेराकोटा फिगराइंस सच एज हम्प्ड बुल, वर्ड्स, स्नेक्स, ह्यूमन फीमेल्स फिगराइंस, ये हमें यहां से नजर आए हैं। एंड ऑर्नामेंट्स मेड फ्रॉम टॉर्टोइज एंड आइवरी, किस किस के बने हुए, बोले सर टॉर्टोइज और आइवरी के यूज से बने हुए। तो निश्चित तौर पर आशुतोष चौहान जी, विशाल जी, आकांक्षा जी और हमारे सभी बीपीएससी के छात्र छात्राएं, excavations in Chiran have revealed stratified Neolithic, Chalcolithic and Iron Age settlement, and it provides the details about the transition in the human habitation pattern from around 2500 to the 30 AD. Am I justified to everyone with the same or not? On the basis of the findings, you people can let me know. जल्दी से मुझे कमेंट कर दीजिए क्या मैं आप सभी छात्र छात्राओं को बेहद स्पष्ट हूं, so that I can sum up the session right now, because जो आपके लिए था, जो हमारे सभी बीपीएससी के लिए और जो हमारे सभी एमपीपीएससी के छात्र छात्राओं के लिए था, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। 12:30 बजे, सॉरी मात्र 12:30 बजे, 12:30 नहीं, हम जो मध्य प्रदेश की चैल्कोलिथिक साइट्स हैं उन पर चर्चा करने वाले हैं। हम इंडस वैली सिविलाइजेशन पर चर्चा करने वाले हैं और उसका संबंध मध्य प्रदेश से समझने वाले हैं। तो मध्य प्रदेश का दूसरा लेक्चर एमपी जीके का 12:30 बजे रहेगा। आप सभी छात्र छात्राएं सेशन का हिस्सा जरूर बने। इसी के साथ एक बार फिर से पुनः आप सभी को, आपके परिवार को, आपके नियर वंस, डियर वंस, लव्ड वंस को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। अभी सेशन को यहीं समाप्त किया जाएगा।